Welcome back to my channel Nursing Exams Made Simple. Hope you remember me well. Myself is Chanchal, nursing officer of VMMC and Safdarjung Hospital. Here I come with a new topic, that is pain management. Here we go. When we start with the pain, we have to understand what is the pain. Pain is an unpleasant emotional or sensory experience that occurs in response to actual or potential tissue trauma and inflammation. It is known as the fifth vital signs. Okay, then goes to the types of pain. Pain is of two types, that is acute pain and chronic pain. In acute pain, it is mild to severe pain lasting less than 6 months, usually associated with the specific injuries and sympathetic nervous system responses, leads to increased pulse rate, volume, rate, depth in the respiration, and the blood pressure. And the second we have is chronic pain. It is mild to severe pain lasting longer than 6 months, associated with a parasympathetic nervous system. Okay, you know the difference. In acute pain we have the sympathetic nervous system activation, and in the chronic pain we have the parasympathetic nervous system activations. Okay, during chronic pain, client may lead to depression or decreased functional status. Let's go to the terminology. Here we have first is pain threshold. Pain threshold is the minimum amount of stimulus that is required to cause sensation of the pain. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जैसे आपने किसी को एक पिन चुभाई, तो इट्स अ मिनिमम स्टिमुलस जिससे it can create a pain that patient can sense. That is pain threshold. Second is pain tolerance. Maximum pain a client is willing to able or endure. कि आप किसी पेशेंट को पिन चुभाते ही जा रहे हैं, चुभाते जा रहे हो, कितना मैक्सिमम पेन है जो वो टॉलरेंस कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड पेन टॉलरेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन इज दैट की बॉडी में हमें एक जगह पे पेन हो रहा है, लेकिन उसका जो टिश्यू ट्रॉमा का एरिया है ना वो दूसरा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन. जैसे पेन एक्सपीरियंस्ड इन एन एरिया डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ टिश्यू ट्रॉमा. Okay, then next we have a intractable pain. Intractable pain is that pain which is not relieved by the conceptual treatment. That is कि हम जो medications दे रहे हैं, जो treatment दे रहे हैं, वो pain उससे भी relieve नहीं हो रहा है. Then we move on to the neuropathic pain. Our next term, neuropathic pain caused by the neurologic disturbances may be associated with a tissue damage. Next is the phantom pain. Phantom pain is pain experienced in a missing body parts. For example, amputations. Amputations में क्या होता है कि जो limb नहीं होता है, जो लिम्ब नहीं होता है, एम्पुटेट हो जाता है, उसी में पेन फील होता है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड फैंटम पेन. देन वी हैव द रेडिएटिंग पेन. पेन एक्सपीरियंस एट अ सोर्स एंड एक्सटेंडिंग टू अदर एरियाज. ये रेडिएटिंग पेन हमें स्पेशली रीनल कॉलिक्स एंड रीनल कॉलिक और उसमें फील होता है. सॉरी, रीनल कॉलिक में हमें रेडिएटिंग पेन फील होता है. ये बैक की तरफ रेडिएट करता है एंड थाइस की तरफ रेडिएट करने लग जाता है. If we move to the physiology of the pain, why we feel the pain? There are sensory neurons or nociceptors in peripheral nervous systems that are stimulated by the biochemical mediators, that is bradykinin. There are many biochemical mediators. When we have any type of stretching, ischemia or inflammation, then these biomedical mediators release, that is serotonin, histamine, potassium and substance P. When there is a mechanical, thermal or any chemical damage to the tissue, they by these chemicals receptor perceive these chemical and then we feel pain. पेन इम्पल्सिस जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं बाय द स्पाइनल कॉलम, थ्रू द स्पाइनल कॉलम बाय टू फाइबर, दैट इज फर्स्ट इज ए डेल्टा फाइबर एंड सेकंड इज सी फाइबर. ए डेल्टा fibers are myelinated large diameter neurons and C fibers are unmyelinated and narrow diameter neurons. बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गेट कंट्रोल थ्योरी बता देती थोड़ा सा. ये स्टिमुलेशन करता है लार्ज डायमीटर फाइबर्स का दैट कैन ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ पेनफुल इम्पल्सेस फ्रॉम द डॉर्सल हॉर्न्स. तो इसको हम गेट कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं. ओके, अब हमने पेन डिस्कस कर लिया, पेन का फिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया. अब हमें मैनेजमेंट डिस्कस करना है. पेन का मैनेजमेंट में हमारे पास दो तरह का मैनेजमेंट आता है. एक आता है हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. तो सबसे पहले एज अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. नॉन फार्माकोलॉजिकल जो पेन मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर. आपने एक्यूपंक्चर का नाम सुना होगा. इसमें डिस्पोजेबल नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है स्किन के अंदर, जो स्किन मेरिडियंस होते हैं उनके अंदर, टू चेंजेस द एनर्जी फ्लो. ठीक है. दूसरा हमारे पास एक्यूप्रेशर. इसका भी नाम आपने सुना होगा. ये फिंगर से प्रेस करते हैं हम कुछ एरियाज को मेरिडियंस के ऊपर. ये वैसे एक्यूपंक्चर से लेस इफेक्टिव होता है, बट कहीं कहीं ये बहुत ही इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट वी हैव द अरोमा थेरेपी. बहुत सारे प्लांट ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं टॉपिकली और मिस्टेड, जैसे जिंजर अर्थराइटिस के लिए, हेडेक्स के लिए, लेवेंडर यूज़ किया जाता है एंग्जाइटी के लिए. तो ये अरोमा थेरेपी यूज़ की जाती है, नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आती है ये.
नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रैक्शंस, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देना है पेशेंट के अटेंशन को अवे फ्रॉम द पेन। देन हीट थेरेपी एंड द कोल्ड थेरेपी हम यूज़ करते हैं पेन मैनेजमेंट में। पेन एक्सपीरियंस को स्टिमुलेट मतलब डिक्रीज कर देता है, डिमिनिश करता है, बस स्टिमुलेट द लार्ज सेंसरी फाइबर दैट इज गेट कंट्रोल थ्योरी को एक्टिवेट करके। कोल्ड जो है दैट प्रमोट वैसो कंस्ट्रक्शन विच हेल्प्स टू रिड्यूस एडिमा, एंड हीट प्रमोट्स वैसो डायलेशन विच इनहेंसेस हीलिंग। Then there's a imagery. Imagery is calming, peaceful thoughts that reduce pain perception. We can use massage, stimulate large diameter fibers, blocking pain transmission. Reflexology भी use होती है, pressure apply किया जाता है onto the areas on feet, hands or ears that corresponds to the specific body organs. May have calming effect through release of endorphins. और स्क्विंटल मसल रिलैक्सेशन होता है, ये रिलैक्सेशन और डिक्रीज एंग्जाइटी करता है एंड पेन परसेप्शन को रिड्यूस कर देता है। ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट थेरेपीज है। इसके अलावा वी हैव ट्रांसक्यूटेनियस। आपने टेंस के बारे में सुना होगा, टेंस की कभी कभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज ट्रांसक्यूटेनियस और परक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें स्टिमुलेट किया जाता है पेरिफेरल सेंसरी नर्व फाइबर्स को दैट ब्लॉक्स द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस। थेरापेटिक टच का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ हैंड्स नियर बॉडी टू इम्प्रूव द एनर्जी इम्बैलेंसेस। एंड हिप्नोसिस होता है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच कॉन्सेंट्रेशन इज फोकस्ड ऑन वन ऑब्जेक्ट। इसे बिलीव किया जाता है दैट पेन स्टिमुला इन ब्रेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द कॉन्शियस माइंड, कि जो पेन परसेप्शंस होते हैं ना उनको हम कॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं करने देते हैं। इससे क्या रिलीज होता है? मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस रिलीज होते हैं लाइक एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स, जिससे कि पेन परसेप्शन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब मूव ऑन करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ। जब हम फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं तो WHO ने ना एक पेन मैनेजमेंट लैडर दिया हुआ है। इसमें स्टेप 1 के अंदर क्या आता है? नॉन ओपियोइड्स आते हैं। जब हम अपने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स को ट्राई कर चुके होते हैं और हम मूव ऑन करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की तरफ, तो हम स्टेप 1 पे लेते हैं देन व्हेन देयर इज अ माइल्ड पेन वी कैन यूज़ नॉन ओपियोइड्स दैट इज एस्पिरिन, पैरासीटामोल्स और एंटासिड्स प्लस माइनस एडजुवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेन और भी इंक्रीज कर रहा है, परसिस्टेंसी अपने उसमें परसिस्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन वी मूव ऑन टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम वीक ओपियोइड यूज़ कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, फॉर एग्जांपल कोडीन, और इसके साथ साथ हम कुछ नॉन ओपियोइड्स प्लस माइनस एडजुवेंट दे सकते हैं जैसे कि एस्पिरिन या फिर पैरासीटामोल। अगर पेन अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। इसमें हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देते हैं पेशेंट को फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन दैट इज मॉर्फिन। इसके साथ में हम उसको प्लस माइनस नॉन ओपियोइड और प्लस माइनस एडजुवेंट जैसे कि पैरासीटामोल या फिर एस्पिरिन देते हैं, या फिर पेशेंट को PCA पंप्स लगा देते हैं दैट इज पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, या फिर मॉर्फिन का कॉन्टिन्यूस या फिर फैंटेनिल का इन्फ्यूजन लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या फार्माकोलॉजिकल, ये लैडर को इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम सबसे पहले आ जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के ऊपर। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? हमारे जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं ओपियोइड रिसेप्टर के साथ, जिससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द डिमिनिशिंग ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन ऑफ द पेन इम्पल्सेस। एग्जाम्पल क्या है इसके? हमारे पास मॉर्फिन है, कोडीन है, मैप्रिडिन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, फैंटेनिल है, जैसे ड्यूराजैसिक या फिर हाइड्रोकोडोन, ये सारे हमारे क्या हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के अंदर आते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मेनली ये क्या करता है? ये CNS डिप्रेशन करता है। ठीक है, अगर हमारा CNS डिप्रेशन हो जाएगा तो क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं हमारे पास? सबसे पहले जो हमारे साइड इफेक्ट आता है वो आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो कि मॉर्फिन के केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मॉर्फिन या फैंटेनिल चल रहा है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम मॉर्फिन का एंटीडोट भी हमेशा साथ में रखते हैं दैट इज नलोक्सिन, और हम रेस्पिरेटरी काउंट्स को याद रखते हैं। अगर किसी का रेस्पिरेटरी जो रेट है अगर वो लेस देन 12 होता है तो हम उसे मॉर्फिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, मॉर्फिन को स्टॉप करके हम उसको नलोक्सिन देंगे। अगर CNS डिप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली लिथार्जी होगा, मेंटल क्लाउडीनेस हो जाता है। मेंटल क्लाउडीनेस में आप स्पेशली क्या याद रख सकते हो? बुबिविकेन। बुबिविकेन की वजह से क्या होता है? मेंटल क्लाउडीनेस हो जाता है। नोजिया वॉमिटिंग होता है। नोजिया वॉमिटिंग में अगर याद रखना हो तो आप ट्रेमाडोल याद रख लो। ट्रेमाडोल है एक जो नोजिया वॉमिटिंग हमेशा कॉज करता है। हाइपोटेंशन हो सकता है, कोई भी हम पेन मेडिकेशन देते हैं या फिर जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ होता है या फिर मॉर्फिन फैंटेनिल है, उसकी वजह से मेनली पेशेंट का क्या होता है? BP डिक्रीज होने लग जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, यूफोरिया है, एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, प्रोराइटिस हो जाता है। नर्सिंग केयर के अंदर क्या आता है? नर्सिंग केयर के अंदर आएगा हमें साइड इफेक्ट्स को ही तो मॉनिटर करना है, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। अगर पेशेंट का डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा, डेप्थ होगा, या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा तो हमें उसका एंटीडोट रेडी रखना पड़ेगा। इंश्योर करेंगे सपोर्ट करने के लिए रेस्पिरेटरी फंक्शन को, जैसे उसे फ्रीक्वेंट टर्निंग एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, कॉफिंग या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, स्पायरोमेट्री करवाएंगे, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे अगर पेशेंट ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स पे चल रहा है तो।
अवेलेबिलिटी ऑफ एंटागोनिस्ट रखेंगे, जैसे कि नैलोक्सिन मैंने बताया मॉर्फिन का एंटीडोट होता है नैलोक्सिन, नाल्ट्रेक्सिन ये रखेंगे इन केस ऑफ द ओवरडोज। इंश्योर करेंगे कि जो मेडिकेशंस है वो रिन्यू होते रहें रिक्वायर्ड इंटरवल्स के बाद। एक्यूरेट काउंट रखेंगे ओपियोइड्स का, ये आप ओपियोइड पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे जिसमें हम डबल लॉकर की रखते हैं, ओपियोइड्स को काउंट रखते हैं, जितने एम्प्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उतने एम्प्यूल्स हमें रिटर्न करने होते हैं, वही हमें वापस मिलते हैं। ये सारा ओपियोइड पॉलिसी के अंदर आता है। मेजर्स यूज़ करेंगे टू प्रमोट एलिमिनेशन, दैट इज़ फूड प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड्स रफेज, इनकरेज अपराइट पोजीशंस, थेरेपेटिक लेवल ऑफ मेडिसिन बना के रखेंगे। एक ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन मेडिकेशंस को ना हमें पहले ही एडमिनिस्टर कर देना चाहिए इन अनटिल कि उसका जो पेन है वो सिवियर हो जाए, क्योंकि एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं अगर पेन सिवियर हो जाता है तो। पेशेंट को हम पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया के बारे में सिखाएंगे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सिवियर पेन। आपने अगर पेशेंट, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, अगर आपने ये पीसीए पम्प्स नहीं देखे हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे होते हैं पीसीए, इसमें जो कैसेट होता है उसके अंदर हम मॉर्फिन या फिर फैंटेनल का सोल्यूशन भर देते हैं एंड इसके साथ डिज़ोल्व करके, देन इसमें ये हाथ में पकड़ने के लिए रेगुलेटर होता है। जब भी पेशेंट को पेन फील होता है वो एक बोलस अमाउंट इसमें से प्रेस कर देता है, बटन को प्रेस करके, बाकी रेगुलर अमाउंट नॉर्मली पेशेंट के अंदर जाता रहता है। यूजुअली ये मैंने कहाँ पर देखा था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ आईसीयू डिपार्टमेंट इन अ कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो वहाँ हम पेशेंट्स को ये पीसीए पंप प्रिस्क्राइब करते थे। हम जैसे ही उन्हें आईसीयू से डिस्चार्ज करते थे वार्ड में, तो हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पीसीए पंप के साथ डिस्चार्ज करते थे। जब धीरे धीरे उनका पेन मैनेज होने लग जाता था तो हम ये पीसीए पंप को हटा देते थे। अगर आप पेशेंट को पीसीएम भी बार बार दे रहे हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, तो आपको उसका भी एंटीडोट अपने पास रखना है, बिकॉज देयर इज रिस्क फॉर टॉक्सिसिटी। एसिटाइल सिस्टीन एंटीडोट होता है एसिटामाइनोफेन का। ये पीसीएम के बारे में भी जो मैंने बताया वो नेसेट्स है। तो नेक्स्ट ओपियोइड के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट नेसेट्स पे, दैट इज नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनका एक्शन क्या होता है, ये पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स में काम करती हैं। वो सीएनएस पे काम करता था, ये पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स में काम करता है। ये डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही है जो हमें पेन को सेंस करने में हेल्प करता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो हम पेन ज़्यादा फील करेंगे। इसमें एनाल्जेसिक्स होता है, इनकी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीपायरेटिक होती है। एग्जांपल्स में जैसे कि एस्प्रिन एंड एसिटाइलसिस्टीन भी बोलते हैं इसको, और सॉरी एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे ओपियोइड इसके अंदर आते हैं, नेसेट्स के अंदर। नेसेट्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, जो मेजर साइड इफेक्ट होता है नेसेट्स का वो जीआई अल्सरेशंस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है। ब्लैक टेरी स्टूल्स देखने को मिलेगा जिसे मेलाना भी बोलते हैं। किडनी और लीवर इम्पेयरमेंट हो जाता है, ये किडनी को अफेक्ट करते हैं। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, इम्पेयर्ड कोगुलेशन होता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हेडेक होता है। एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, एस्पिरिन के साथ टेनाइटस होता है, ये स्टार मार्क का क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन हो जाता है, सीजर्स भी होते हैं, हाइपरटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकते हैं ओल्डर पेशेंट्स के अंदर। नर्सिंग केयर क्या है, हमें जब भी पेन मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं उसे हमेशा फूड या फिर मिल्क के साथ ही एडमिनिस्टर करना है, एम्प्टी स्टमक नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये क्या करेगा, जीआई इरिटेशन कॉज करेगा। इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को वो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए, ताकि हम उसे किडनी से एक्सक्रीट कर सकें और वो किडनी पर अपना एडवर्स इफेक्ट ना छोड़कर जाए। ठीक है, इसलिए हमें मॉनिटर करना है बाकी साइड इफेक्ट्स के लिए। सीबीसी कंप्लीट करवाना है पेशेंट का, लीवर और किडनी फंक्शन को चेक करना है, टीच करना है पेशेंट को कि अल्कोहल और एस्पिरिन ना ले अगर वो नेसेट्स ले रहा है तो। ठीक है, क्यों क्या हो जाएगा, नेसेट्स क्या करते हैं, जीआई इरिटेशन या फिर जीआई अल्सरेशन कॉज करते हैं। एस्पिरिन क्या करते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग की तरह भी है, तो क्या हो सकता है पेशेंट को, क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हम अवॉइड करेंगे। अदर्स नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के अंदर हमारा आता है पीसीएम। ठीक है, इसे टैनोलॉल या फिर एसिटामाइनोफेन भी बोलते हैं। ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देता है कॉज्ड बाय द इनहिबिशन ऑफ सीएनएस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। इसका पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट जो है वो एंटीपायरेटिक होता है, लेकिन ये पेन मैनेजमेंट के भी काम आ जाता है। मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पीसीएम के, मेजर में आपको बस एक ही रखना है, इट कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसमें हमें क्या है, पेशेंट का एलएफटी करवाते रहना है। पेशेंट का जो एक दिन का डोज होता है, मतलब 1 डे का डोज है, वो नॉट मोर देन 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम से ज़्यादा अगर पेशेंट पीसीएम का डोज ले लेता है तो इट मे कॉज टॉक्सिसिटी इन द पेशेंट्स लीवर।
अब बात आ जाती है जनरल नर्सिंग केयर की। हम क्या करेंगे अगर क्लाइंट्स पेन में है, तो सबसे पहले हमें असेसमेंट करना है। हम क्लाइंट के पेन को असेस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमरेटिंग रेटिंग स्केल होता है 0 to 10 के लिए। वोन बेकर फेसेस पेन स्केल बोलते हैं इसको। ये किसने दिया था? ये वोन बेकर ने दिया था। इसमें फेसेस बने होते हैं 0 to 10 की रेटिंग स्केल के। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इससे क्या होगा, हम पेशेंट की जो पेन है उसको असेस करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इससे हम पता लगाएंगे। ये है, हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम पेशेंट को ये पेन असेसमेंट स्केल है ये दिखाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अपने पेन को 0 से लेकर 10 में डिस्क्राइब कीजिए कि आपको किस तरह का पेन है। तो पेन वो फेसेस को देखते हैं नीचे की। जो 0 में हमारा नो पेन आता है, स्माइलिंग फेस है। 1 to 3 में माइल्ड पेन आता है। मॉडरेट में येलो कलर का जो स्माइली है वो है। और सीवियर इट्स 5 to से 4 to 6 में सीवियर आ जाता है। वेरी सीवियर 7 to 9 तक रहता है। एंड वर्स्ट पेन देन द स्माइली इज क्राइंग, तो वो 10 पर आते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट मार्क करके आपको बता देगा कि मुझे इतना पेन हो रहा है। ठीक है, ये वोन बेकर्स का पेन असेसमेंट स्केल था। इसके अलावा जो फ्लैश स्केल होता है, फ्लैश स्केल बच्चों में यूज़ होता है इन स्पेशली नियोनेट्स में। इसमें फेस, लेग्स एक्टिविटी, क्राई, कंसोर्टेबिलिटी ये सब देखा जाता है बच्चों में पेन को देखने के लिए। एसोसिएटिंग साइन एंड सिम्टम्स को देखना है। वाइटल साइंस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग है, डायरिया, डायफोरेसिस है। नॉन वर्बल क्लूज को भी देखना है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या है पेशेंट की, सेल्फ स्क्विंटिंग पोजीशन है, स्प्लिंटिंग पोजीशन है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, उसकी एज क्या है, ओल्डर अडल्ट है, बच्चा है, उसका क्या कल्चर है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पेन को लेकर एंग्जाइटी, फियर, ये सब क्या है, इस सबको ध्यान रखना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे जो मैंने बता दिया, नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके। देन मॉनिटर और डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्लाइंट का पेन रिलीफ हुआ या नहीं हुआ, रिस्पॉन्स क्या है उसका हमारे पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशंस के बाद। नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ कर लिया। देन हमने प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिया फिर लोकल एनेस्थेटिया का यूज़ कर लिया। साइड इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए भी हमने जैसे फाइबर्स या फिर फ्लूइड्स, कॉन्स्टिपेशन ना हो ओपियोइड्स की वजह से, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ क्लाइंट्स देना है सर्जिकल इंटरवेंशंस ऑफ पेन मैनेजमेंट के लिए। सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए ना बस हमारे नर्सिंग के एग्जाम्स में सिर्फ नाम पूछा जाता है कि पेन मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं। तो फर्स्ट इज राइजोटमी होती है, कॉर्डोटमी होती है, सिंपैथेटेक्टमी होती है और डॉर्सल कॉलम स्टिमुलेटर और पेरिफेरल नर्व इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये आप यहीं से पॉज करके वीडियो में इसके अंदर का पढ़ लेना, अंदर का कुछ नहीं बताने वाली। जब भी हमें पेशेंट के पेन का असेसमेंट करना है तो मुझसे ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट प्रोवोक्स द पेन, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द पेन, डज द पेन रेडिएट्स, व्हाट इज़ द सीवियरिटी ऑफ द पेन, व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ द पेन, उसके कोरिलेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ है जो उसके पेन को ठीक कर देती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ उसके पेन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये इस स्केल के साथ हम पेशेंट से ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हीट है, कोल्ड एप्लीकेशन है, मसाज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी है, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है, अरोमा थेरेपी है, गाइडेड इमेजिनरी है, लाफ्टर है, म्यूजिक है, बायो फीडबैक है, सेल्फ हिप्नोसिस है, एक्यूपंचर है, फिर एक्यूप्रेशर है। इसी के साथ हम अपना पेन मैनेजमेंट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।